Good morning, students. Today we are discussing the previous year examination questions of chapter 1st, the era of Cold War, and chapter 2nd, the end of bipolarity. These questions are of 1 mark question. So let us start with question number 1. Which two objectives Jawaharlal Nehru wished to achieve through the strategy of non-alignment? You know that after the end of Second World War, when the world was divided between the two super blocs, Eastern Blocs, which was headed by USSR, and Western Bloc, which was headed by United States of America. At that time, Pandit Jawaharlal Nehru and several other leaders, they gave a third option to the world, that the non-aligned movement, that do not join either USA or USSR. So which objectives Jawaharlal Nehru wished to achieve through the strategy of non-alignment? गुटनिरपेक्षता की नीति से कौन से दो महत्वपूर्ण उद्देश्यों को पूरा करना चाहते थे जवाहरलाल नेहरू? The two objectives of Jawaharlal Nehru wished to achieve through the strategy of non-alignment. First, to equip India to take a firm stand on international issues. If India join USA or USSR, अगर भारत अमेरिका या सोवियत संघ को ज्वाइन कर लेता तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर वह अपनी स्वतंत्र प्रतिक्रिया नहीं दे सकता था। तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर भारत अपना क्या कर सकता था, अपना स्टैंड रख सकता था अगर वो उन दोनों गुटों से क्या रहता, अलग रहता। सेकेंड, टू मेंटेन इंडियाज सोवरेनिटी, भारत की संप्रभुता को बनाए रखना, इट वाज द अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट। नेक्स्ट, टू टेक इट्स डिसीजन इंडिपेंडेंटली, अपने डिसीजंस को क्या करना, स्वयं लेना। दिस वाज आल्सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट। एंड नेक्स्ट, टू एनेबल इंडिया टू बैलेंस वन सुपर पावर अगेंस्ट द अदर थ्रू द नेम। नाउ इंडिया इज फ्री टू मेक रिलेशन, गुड रिलेशन विद यूएसए और यूएसएसआर, दोनों ही देशों के साथ भारत देश क्या कर सकता था, अच्छे रिलेशंस बना सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो कॉल्ड वेस्टर्न अलायंस? This North Atlantic Treaty Organization came into existence in 1949. It was a military pact which was signed by 12 countries and headed by United States of America. क्वेश्चन कहा गया है कि उत्तर अटलांटिक संधि संगठन को पश्चिमी गठबंधन क्यों कहा गया है? The North Atlantic Treaty Organization was also known as Western Alliance because most countries of the Western Europe sided with the US. क्योंकि पश्चिमी यूरोप के अधिकतर देशों ने किसका साथ दिया था, अमेरिका का साथ दिया था, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, वेस्टर्न अलायंस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वाज वार्सा पैक्ट ऑल्सो कॉल्ड द ईस्टर्न अलायंस? अब वार्सा पैक्ट को ईस्टर्न अलायंस, वार्सा पैक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1955. 15 members were there in the Warsaw Pact, and this Warsaw Pact was also a military alliance which was headed by United Soviet Socialist Republic. वार्सा पैक्ट जिसका जन्म 1955 के अंदर हुआ, जिसके जो हेड थे वो कौन थे, सोवियत संघ थे। इसको ईस्टर्न अलायंस क्यों कहा जाता है? The Warsaw Pact was also called Eastern Alliance due to alliance of Eastern European countries with the Soviet Union, क्योंकि पूर्वी यूरोप के अधिकतर देशों ने किसके साथ गठबंधन किया था, सोवियत संघ के साथ गठबंधन किया था, इसलिए इसको कौन सा अलायंस कहा जाता है, ईस्टर्न अलायंस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीटो? द फुल फॉर्म ऑफ सीटो इज साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाय कोल्ड वॉर? शीत युद्ध से आपका क्या अभिप्राय है? द कोल्ड वॉर वॉज द टेंस रिलेशनशिप बिटवीन द यूएस एंड यूएसएसआर एंड देयर एलाइज. सो कोल्ड वॉर वॉज नॉट ए डायरेक्ट वॉर, इट वॉज द period of tensions between the USSR and their allies nations which emerged after the Second World War. You know that the end of Second World War was the starting point of the Cold War. The outbreak of the Cold War was due to different ways of thinking, that is socialism and capitalism. It was also an ideological war. United Soviet Socialist Republic wanted to show that socialism model of economy is better than capitalism, and America shows that capitalism is better than socialism. उस समय पूंजीवाद वर्सेस समाजवाद की जो एक विचारधारा थी उसके ऊपर भी कोल्ड वॉर क्या था, आधारित
था। दिस वॉर वॉज अनलाइक अदर वॉर्स इन विच टू साइड्स नेवर क्लैश डायरेक्टली इन द बैटल। ये दूसरे युद्धों से इसलिए अलग था क्योंकि इसमें दोनों महाशक्तियां कभी भी एक दूसरे के साथ प्रत्यक्ष रूप से क्या नहीं कर रहे थे, उन्होंने युद्ध नहीं किया था। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आता है, नेम द टू सुपर पावर रेस्पॉन्सिबल फॉर द कोल्ड वॉर, व्हेन डिड द वर्ल्ड बिकेम यूनिपोलर। द यूएसए एंड यूएसएसआर वर द टू सुपर पावर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द कोल्ड वॉर। दो महाशक्तियां सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका इसके लिए रेस्पॉन्सिबल थी। द वर्ल्ड बिकेम यूनिपोलर विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर इन 1991। सन 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया, जिससे बाइपोलरिटी का जो रिज्म चला आ रहा था वो एंड हो गया और यूनिपोलरिटी जो था वो शुरू हो गया। इट मीन्स दैट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रिमेनिंग द सुपर पावर इन द वर्ल्ड। Next, when and why did India sign the 20 years Treaty of Peace and Friendship with the Soviet Union? In 1971, there was the war between the India and Pakistan. 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में एक युद्ध होता है। एट दैट टाइम चाइना एंड अमेरिका साइडेड विद पाकिस्तान। उस समय चाइना और अमेरिका पाकिस्तान की तरफ होते हैं। एट दैट टाइम इंडिया made a friendship treaty with United Soviet Socialist Republic in 1971 for 20 years. India signed the 20 years Treaty of Peace and Friendship with the Soviet Union in 1971 in order to counter the US-Pakistan-China axis. This treaty assumed India of Soviet support if the country forced any attack. अब इसमें जो 20 वर्षीय जो संधि हुई थी, इसमें साफ तौर पर लिखा गया था कि अगर भारत देश के ऊपर हमला होता है तो सोवियत संघ उसकी क्या करेगा, मदद करेगा। क्योंकि 1971 में 3 देश एक तरफ थे, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, why has India refused to sign the CTBT? Why Comprehensive Test Ban Treaty? This is the full form of CTBT and India ने इसके ऊपर साइन करने से मना क्यों कर दिया? India has opposed the international treaties aimed at non-proliferation. Non-proliferation treaty 1967 में आई थी, जो केवल क्या कर रही थी, जो रिमेनिंग सुपर पावर्स थे एक्सेप्ट 5 जो आज परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल है, चाहे वो यूएसए है, चाहे वो रशिया है, चाहे वो फ्रांस है, चाहे वो चाइना है, इन कंट्रीज़ के पास ही वो क्या यूके है, ब्रिटेन है, इनके पास ही वो क्या कर सकते थे, न्यूक्लियर पावर्स को मेंटेन कर सकते थे। क्योंकि उसमें साफ तौर पर एनपीटी में लिखा गया था कि 1 जनवरी 1967 से पहले, 1 जनवरी 1967 से पहले अगर किसी ने अपने न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं उनको टेस्ट कर लिया है तो वही कंट्रीज़ क्या कर सकेंगे, अपने पास न्यूक्लियर जो आपके वेपन्स हैं उनको मेंटेन रख सकेंगे। तो इंडिया ने इसका अपोज किया क्योंकि इंडिया ने अपना फर्स्ट जो न्यूक्लियर टेस्ट था वो 1974 के अंदर क्या किया था, कंडक्ट किया था। इंडिया हैज़ अपोज द इंटरनेशनल ट्रीटीज एम्ड एट नॉन प्रोलिफरेशन since they were selectively applicable to the non-nuclear powers and legitimized the monopoly of 5 nuclear powers. Thus, India has refused to sign the Comprehensive Test Ban Treaty. भारत देश ने इसलिए मना किया क्योंकि भारत देश को ये जो ट्रीटी थी वो एक परमाणु शक्ति संपन्न देश बनने से क्या कर रही थी, रोक रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द न्यू इंटरनेशनल ऑर्डर? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द न्यू इंटरनेशनल ऑर्डर वाज डेवलपमेंट ऑफ द लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज and to lift their people out of poverty. न्यू इंटरनेशनल ऑर्डर अंकटाड के अंदर 1972 में एक सम्मेलन होता है जिसके अंदर जो जितने भी अल्प विकसित देश हैं उनके लिए कुछ प्रपोजल्स रखे जाते हैं, जैसे कि वो वेस्टर्न कंट्रीज़ की मार्केट तक पहुंच रखते हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी जो वहाँ से आ रही है वो चीप प्राइस पे आनी चाहिए, उनके रिसोर्सेज पर उनका क्या होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। तो ये सभी जो आपके ऑब्जेक्टिव्स थे वो कहाँ रखे गए थे, इंटरनेशनल ऑर्डर में LDCs के लिए रखे गए थे, ताकि उनके लोगों को गरीबी की साइकिल से, जो पॉवर्टी साइकिल था उससे क्या निकाला जा सके, बाहर निकाला जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट व्हाट वाज न्यू इंटरनेशनल ऑर्डर? न्यू इंटरनेशनल ऑर्डर was the order aimed at economic development of the least developed countries and to lift their people out of poverty. वहाँ के लोगों को क्या निकालना था, गरीबी की जो साइकिल थी उससे बाहर निकालना था। नॉन अलाइनमेंट डज नॉट इम्प्लाई न्यूट्रलिटी और इक्विडिस्टेंस। व्हाट डज दिस स्टेटमेंट मीन? इस स्टेटमेंट का क्या अर्थ है? तो इस स्टेटमेंट का क्या अर्थ है देखते हैं कि नॉन अलाइनमेंट का मतलब न्यूट्रलिटी और इक्विडिस्टेंस नहीं था। इसका क्या अर्थ है? द स्टेटमेंट मीन्स
The statement means that non-alignment is a policy of fleeing away or being neutral from the superpower. It also means playing an active role in maintaining between the two rivals alliances for the cause of peace and stability. Neutrality का मतलब होता है stay away from the world matters, but India played a crucial role maintaining peace between the two superpower. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है? मेंशन द इम्पैक्ट ऑफ द एंड ऑफ कोल्ड वॉर. कोल्ड वॉर के एंड का क्या इम्पैक्ट हुआ? द हॉस्टिलिटी बिटवीन द यूएस एंड यूएसएसआर केम टू एन एंड. जो तनाव की स्थिति चली आ रही थी यूएसए और यूएसएसआर के बीच, वो समाप्त हो गई. नेक्स्ट है सोवियत यूनियन वॉज डिसइंटीग्रेटेड. सोवियत संघ का बिखराव हो गया. द एंड ऑफ कोल्ड वॉर मींट द एंड ऑफ बाइपोलरिटी इन द वर्ल्ड एंड एरा ऑफ यूनिपोलरिटी वॉज बिगेन. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय यूनिपोलरिटी एंड बाइपोलरिटी. एक ध्रुवीयता और द्विध्रुवीयता में क्या अंतर है? यूनिपोलरिटी मीन्स एमर्जेंस ऑफ ओनली वन power, that is USA, after the disintegration of USSR. In December 1991, USSR was disintegrated. After that, USA remaining superpower in the world. That period is referred to unipolarity. And bipolarity means when after the Second World War the world was divided between the two military alliances, that was the USA and USSR. Next question, why did India not join either NATO or SEATO? India did not join either NATO or SEATO due to the development of non-alignment, which gave it a way of staying out of the alliance. India had faith in the policy of non-alignment. भारत का गुटनिरपेक्षता की नीति में विश्वास था. भारत किसी भी गुट का सदस्य नहीं बनना चाहता था. नॉन अलाइनमेंट उसके लिए एक थर्ड ऑप्शन था जिसका उसने क्या किया, फॉलो किया, क्योंकि इंडिया का पूरा विश्वास था गुट निरपेक्षता के अंदर. दैट्स वाज द रीजन दैट इंडिया डिड नॉट ज्वाइन नाटो और सीटो. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज बैलेंस ऑफ पावर? बैलेंस ऑफ पावर मीन्स व्हेन बोथ साइड्स हैव द कैपेसिटी टू फाइट अगेंस्ट अटैक एंड टू कॉज सो मच डिस्ट्रैक्शन दैट नाइदर कैन अफोर्ड टू इनिशिएट वॉर. बैलेंस ऑफ पावर का मतलब ये होता है कि देखिए कोल्ड वॉर से रिलेटेड ही मैं इसको आपको समझाता हूँ. यूएसए और यूएसएसआर बोथ वर लेस विद द न्यूक्लियर वेपन्स. दोनों ही न्यूक्लियर वेपन्स से क्या थे? लेस थे. दोनों ही माइटिएस्ट कंट्री थे वर्ल्ड के. दोनों ही कंट्री ये जानते थे कि इफ़ देर वॉज ए वॉर, अगर क्या होता है, युद्ध होता है, नो वुड बी विद द विनर. तो कोई भी क्या नहीं होगा, विनर नहीं होगा, क्योंकि इतना डिजास्टर हो जाएगा, इतना डिस्ट्रक्शन हो जाएगा कि कोई भी जो है शक्ति जो है वो इनिशिएट नहीं करेगी क्या हो, वार हो. बहुत से ऐसे इंसिडेंट आए. क्यूबा मिसाइल क्राइसिस एक ऐसा इंसिडेंट था जिस समय दोनों ही शक्तियां एक दूसरे के सामने थी, लेकिन युद्ध नहीं हो सका क्योंकि वो लॉजिक ऑफ डेटरेंस था, वो बैलेंस ऑफ पावर था. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? मेंशन द नेम ऑफ ईस्टर्न अलायंस लेड बाय सोवियत यूनियन. द ईस्टर्न अलायंस वॉज ऑल्सो नॉन एज वार्सा पैक्ट. ईस्टर्न अलायंस को वार्सा पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है. इट वॉज क्रिएटेड इन 1955 विद प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ काउंटर नाटोस फोर्सेज इन यूरोप. इट वॉज लेड बाय सोवियत यूनियन. इसका एक ही उद्देश्य था, किसी तरीके से यूएसए के प्रभाव को रोकना, जो 1955 के अंदर बना था. नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट. गुट निरपेक्षता के जो दो मुख्य विशेषताएं हैं उनका वर्णन कीजिए. टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट वर डी एसोसिएशन फ्रॉम मिलिट्री अलायंस. आपको जितने भी मिलिट्री अलायंस है, चाहे वो आपका नाटो है, वार्सा है, उनसे दूर रहना है. एमिंग फॉर वर्ल्ड पीस, और विश्व शांति को क्या रखना है, बरकरार रखना है. सो डियर स्टूडेंट्स, in this video we just learn only 1 mark question of chapter 1st. In next video we will discuss the question answer of 1 mark of chapter 2nd, the end of bipolarity. Thank you and have a nice day.